ہم اپنی کلاس کا آغاز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے کرتے ہیں جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہم نے اس کے ناموں کے ذریعے سے اس کے ساتھ تعلق بنانے کی کوشش کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین ثم آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام پڑھے ہیں ان کے اوپر ہم نے تدبر کرنے کی کوشش کی ہے. ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنا چاہا ہے, اس میں گہرائی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. سب میں دو چیزیں ہم نے کامن رکھی. ایک تھی کہ ان ناموں کے ذریعے سے ہم جو بھی اپنے اندر تبدیلی لانا چاہیں, اپنے کردار میں جو بھی کچھ صفات ایڈ کرنا چاہیں, کچھ کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہیں, دعاؤں کے ذریعے سے ممکن ہوگا. ان دا اینڈ ہمیں ساری کوششوں کے ساتھ اس کو جو ٹاپ آف کرنا ہوگا وہ دعا کے ذریعے کرنا ہوگا. دعا اپنے آپ میں ایک عقیدہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے. ہماری ایک کوشش ہے اس کام کے لیے جو ہم کر رہے ہیں. دعا اس سبب کا, اس کوشش کا حصہ ہوتی ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے کل المجیب اللہ سبحانہ وتعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا, ہماری دعاؤں پہ رسپانس دینے والا, ہماری ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا, اس کے بارے میں کل پڑھا تھا. اور آج ہم جو نام پڑھیں گے, دوسری چیز جو ضروری ہوتی ہے کسی بھی چیز کے اندر کہ کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں وہ ہے محاسبہ. ہم نے ان دا اینڈ اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے اندر جو ہے وہ چیک کرنا ہے, اپنے آپ سے باز پرس کرنی ہے. تو اس حوالے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام الحسیب المحاسب, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اور آپ سب کے سامنے نظر آ رہا ہے الحسیب کا مطلب ہے المحاسب, مطلب ہے اس کا حساب لینے والا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ حساب لینے والے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا محاسبہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سے باز پرس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کرتے ہیں. یہ سب کے سب میننگ جو ہے الحسیب میں المحاسب میں آتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص فردن اللہ کے آگے ذمہ دار ہے, جواب دہ ہے. زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور ہم سب اس کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں. وہ غیب اور شہادت کا علم رکھنے والا ہے, یہاں تک کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے ارادے اور خیالات تک جانتا ہے. اس کو پورا حق ہے, یہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ اپنی مخلوقات سے, اپنی بہترین مخلوق سے, انسانوں سے محاسبہ کرے. آپ کو روٹ ورڈ نظر آ رہا ہے, ہاں سین با, اور اسی سے حساب یا محاسبہ کے لفظ ہیں. حساب کا مطلب ہوتا ہے گنتی کرنا, کسی چیز کا شمار کرنا. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں محاسبہ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو شمار کرنا, دیکھنا اور اس کے مطابق اجر اور بدلہ دینا. اب سوال یہ ہے جس کا جواب آپ لوگ مجھے دیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الحسیب کے طور پہ اپنا تعارف کروانے کی ضرورت کیوں ہے؟ حساب کیوں لینا ہے؟ محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الرحمن ہے, وہ تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں, پھر حساب کا کیا معاملہ ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ حساب کا اللہ. معاملہ جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں بھیجا گیا ہے
تو ظاہر ہے جو انسان نیکیاں کرنے والا ہے اور جو گناہ کرنے والا ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. جو اللہ کو ماننے والا ہے جو نہیں ماننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو ظاہر ہے جو جیسا کرے گا اس کا بھی بدلہ تو لینے والا کوئی ہونا چاہیے نا, کہ اس کو پھر انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو جیسا کرے گا اس کے حساب سے اس کے بدلہ دے. اوکے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاف کر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایک ذمہ داری ہم کو دے کے بھیجا ہے, اور یہ بہت بڑی جس کو بھی یعنی کوئی رسپانسبلٹی کے ساتھ کہیں بھیجا جاتا ہے تو جو بھیجنے والا ہے وہ اس کا ایک طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی یا اکاؤنٹیبل اس کے لیے وہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ذمہ داری دی گئی تھی اس کو کس طرح پورا کیا. اور دوسری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بے حساب نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ اس سے پھر اس کے متعلق پھر وہ ہے یہ کہ وہ ضروری ہے کہ وہ اس کا حساب دے کہ اس نے ان نعمتوں کو ان صلاحیتوں کو اس وقت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا وہ کس طرح استعمال کیا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ منعم ہے. تو یہ مجھے جو سمجھنا ہے, اور یہی آخرت کا عقیدہ سمجھے, یہی وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسماء الحسنی میں سے ایک اسم مبارک ہے جس سے ہمیں ہمارے اندر آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ پختہ بھی ہوتا ہے مزید, اور ہم زیادہ خواہشات رہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی اس دنیا میں کر رہے ہیں یا جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں یا جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہمیں اس کا ایک دن حساب دینا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. دونوں بہنوں کا بہت شکریہ. جی ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح اپروچ کے ساتھ اس نام کو اپنے نام کی طرف آپ گئے. جی سسٹر رانا آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی بالکل, ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لارڈ ہیں, معبود برحق ہے, تو ہم خلیفہ ہیں. تو جب وزارتیں ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں وزارتیں ملی ہوتی ہیں تو ہمارے سپرد کام ہوتے ہیں, تو اس کا پھر محاسبہ ہوتا ہے. تو ہم اپنے لارڈ کو اس کا حساب دینا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بھی ایز اے خلیفہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں, تو محاسبہ تو انشاءاللہ ہوگا. پھر جزاکم اللہ خیرن کثیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں اور آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے. بالکل ٹھیک آپ لوگ پہنچ رہے ہیں, اسی طرح سے ہم نے اس کو سوچنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ٹینڈنسی رکھی ہے, ایک اس کے نفس کے اندر ایک خصوصیت ہے جو اس دنیا میں جب آتی ہے تو وہ خصوصیت اس کی کمی بن جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر ایک ڈیفیکٹ کے طور پہ اس دنیا کے اندر, اس ارض و سماوات میں جہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں, اس کائنات کے اندر وہ ایک ڈیفیکٹ, حالانکہ وہ بلڈ ان خصوصیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. اس کی ریزن بھی دیکھتے ہیں کہ کیوں ہے وہ, لیکن وہ خصوصیت کیا ہے؟ سب بلد کے سٹارٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی یہ فطرت بیان کی ہے, یہ انسان کے نفس کی یہ ایک انکلینیشن ہے کہ وہ یہ چاہتا نہیں کہ کوئی اس کو پوچھ گچھ کرنے والا ہو, کوئی اس کے اوپر رکاوٹ ڈالنے والا ہو. وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا, وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے. جب اس دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فطرت کے ساتھ انسان کو بھیجتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ کہیں پہ جب بھی انسان کو کوئی چھوٹا سا اقتدار, چھوٹا سا اختیار ملتا ہے تو وہ اس کو ابیوز کرتا ہے, وہ اس کا استعمال کرتا ہے ایسے کہ اب مجھے کسی کو جواب نہیں دینا. یہ نفس کی اس خصوصیت کی وجہ سے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نفس کی خصوصیت جو ہے وہ انسانوں کو فرعون بنا دیتی ہے, یہ انسانوں کو اسرائیل بنا دیتی ہے, یہ انسانوں کو زائنسٹ بنا دیتی ہے. تو کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خصوصیت نفس کے اندر رکھی؟ جب اس کو اختیار ملتا ہے وہ بغیر روک ٹوک, بغیر باز پرس کے, بغیر کسی محاسبے کے اس اختیار کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اصل میں بات یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات کے لیے بنایا نہیں. اللہ نے آپ کو اور مجھے ایک اور یونیورس میں کریٹ کیا ہے, ہمیں جنت عدن میں بنایا گیا ہے, اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور بنی آدم کو جنت میں رہنے کے لیے بنایا. اور آپ کو پتا ہے جنت ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی باز پرس نہیں ہوگی, جہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, جہاں پہ کوئی محاسبے کا کسی قسم کے سوال جواب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو بیسیکلی ہمارا نفس اس جگہ کے لیے بنا ہے, لیکن اس دنیا کے اندر
मुहासबे के बगैर इंसान अपनी लिमिट्स को नहीं पहचान सकता, कहीं ना कहीं उसको रोकना पड़ता है। अगर ना रोका जाए तो जैसे अभी बात हो रही थी कि वो फिर अपने इस इख्तियार को अब्यूज करता है, तो इंसान को उसके मुकाम और इस अपने नफ्स को गलत इस्तेमाल करते हुए खुद अपना भी नुकसान कर लेता है। उस नुकसान से बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक ये तसव्वुर, एक ये अकीदा, हमें अकाउंटेबिलिटी का, एक हिसाब किताब का अकीदा जो है वो हमें अपने अल हसीब नाम के साथ दिया कि आप इस दुनिया के अंदर आए हैं थोड़े से वक्त के लिए, अपने आप को किसी भी निगरानी, किसी भी मुहासबे के बगैर समझ के जिंदगी नहीं गुजारनी। आपके इस दुनिया के अंदर गुजारे हुए हर लम्हे का, हर अमल का हिसाब देना पड़ेगा। हर नेमत जो आपको इस दुनिया में दी गई है, देने वाला उसके बारे में आपसे सवाल करेगा कि उसके साथ क्या करके आए हो। सो अल्लाह सुब्हाना व तआला के इस नाम को अगर हम ज़हन में रखेंगे, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, कोई भी काम करते हुए, किसी भी नेमत को इस्तेमाल करते हुए कि हमें इसका जवाब देना है, हमारी दुनिया की जिंदगी में भी हम उस इंसान के तौर पर सामने आएंगे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें देखना चाहते हैं। अपने खलीफा को जिस किरदार में वो देखना चाहते हैं, जिस शेप में वो देखना चाहते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला उस शेप में रहेंगे। और आखिरत के अंदर फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने फरिश्तों के सामने, अपनी दूसरी मखलूकात के सामने फख्र से हमें पेश करेंगे कि ये है वो मेरा बंदा जिसको मैंने दुनिया में भेजा था। तो सो मुहासबे का कॉन्सेप्ट जो है, इवन हम अपने आप को अगर छोड़ देते हैं ना थोड़ी देर के लिए, हम नहीं देख रहे होते, तो हमको बहुत सी ऐसी चीजें करते हुए अपने आप को पाते हैं जो हम अदरवाइज कभी ना करें। जैसे ही ख्याल आता है तो हम रियलाइज करते हैं। हमारे बच्चों में हमने ये देखा है कि उनको भी एक टाइम टू टाइम रिमाइंडर, एक चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर क्रिएट करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि मुहासबे की जरूरत जो है वो तो हमें पता चल गई क्यों है, क्योंकि इंसान के अंदर ये टेंडेंसी है, अगर उसका हिसाब किताब नहीं रखा जाएगा, अगर इस तरह का एक चेक एंड बैलेंस उस पर नहीं रखा जाएगा कि तुमसे हिसाब लिया जाएगा, तो वो अपने इख्तियार को, अपने इक़्तिदार को गलत इस्तेमाल करेगा। अब हिसाब कौन ले सकता है? किसके पास है ये इख्तियार, ये इस्तेहकाक कि वो इंसानों से हिसाब ले? तो आपकी बात से बात ज़हन में यही आई है कि इंसानों का हिसाब तो अल्लाह सुब्हानो तआला ही लेंगे ना, जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमें बनाया है, और वो हर चीज से पाक है, ऐसी चीजों से। सुभान अल्लाह खैर। जी, जब भी कोई जॉब होती है उसके लिए एक रिक्वायर्ड स्किल सेट होता है। उस जॉब को करने के लिए आपको किस तरह की खसूसियात चाहिए, किस तरह की सिफात चाहिए, कौन सी आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, फिर आप ये जॉब कर सकते हैं। हिसाब लेने के लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए, अब हिसाब तो कोई ऐसा ही ले सकता है ना जिसके पास खुद के पास पूरा इल्म हो, जिसके पास जो खुद जिसने नेमत दी है वो हिसाब ले सकता है, या वो हिसाब ले सकता है जो कि रब है। तो ये सारी खसूसियात अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सिवा किसी के पास नहीं है। इसलिए अल्लाह ने हिसाब लेने का जो जिम्मेदारी है, जो हिसाब लेने का इस्तेहकाक है, वो अपने पास रखा है, किसी के साथ शेयर नहीं किया। कोई किसी का हिसाब नहीं ले सकता। सूरह राद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहे हैं और उसके बाद आपको और मुझे, हम सबको बता रहे हैं कि हमें अगर कहीं पे कोई खराबी नजर आ रही है, कोई हमें अपनी हदों से बाहर नजर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो हमारा काम सिर्फ रिमाइंडर देना है। हम सिर्फ एक बार उनको याद दिला सकते हैं कि आप ये काम अल्लाह की हद को तोड़ के कर रहे हैं, आपको ऐसे नहीं करना। हिसाब नहीं हम ले सकते उनसे। अगर उसके बाद दे स्टिल डिसाइड कि वो उस हद को तोड़ेंगे, हमारा उनके ऊपर जोर और जबरदस्ती के साथ सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने पास ही रखा है। सूरह गाशिया में अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे पास हिसाब है। बहुत सारे मुकामात पर हमें कुरान में, हदीस में खोल के बता दिया गया कि इंसानों में से अल्लाह ने किसी को ये इख्तियार दूसरे के इंसान के ऊपर नहीं दिया कि वो उससे बाज़पर्स करे, उससे सवाल करे, या जबरदस्ती उसके ऊपर कोई अच्छी या बुरी चॉइस अपनी जो है वो फोर्स करने की कोशिश करे।
बुरी चॉइसेस के लिए तो ईमान वाले के पास क्या है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो बुरी चॉइस अगर कोई फोर्स कर रहा है तो वो खड़ा होगा उसके अगेंस्ट, वो उसको कहेगा कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी के खिलाफ जो काम हो रहा है ये मेरे ऊपर फोर्स नहीं किया जा सकता। ईमान का तकाजा ये है। और अगर कोई अच्छी आपके पास चॉइस है, अगर कोई आप नसीहत करना चाह रहे हैं, अल्लाह के साथ जोड़ना चाह रहे हैं, तो वो भी आप नसीहत के अंदाज में, रिमाइंडर के अंदाज में करेंगे, फोर्सफुली आप वो भी नहीं कर सकते। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस डिपार्टमेंट को राइटली अपने लिए रखा है। हमने ये देख लिया कि कोई और इस काम को कर ही नहीं सकता। हमें नहीं पता कोई किस नीयत से क्या काम कर रहा है, हमें नहीं पता उसके आगे क्या है, उसके पीछे क्या है, वक्त के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से, उसके इफेक्ट के हिसाब से, तो हम किस तरह से किसी का हिसाब ले सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इसको टोटली अपने पास रखा है। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में जब भी अपने हिसाब की बात करते हैं तो दो खसूसियात हमें खास तौर पे सामने नजर आती हैं। वो क्या है? कफा बिल्लाही हसीबा, अल्लाह ताला काफी है हिसाब लेने के लिए। और दूसरा इन्नल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह हिसाब लेने में देर नहीं लगाते। अल्लाह के हिसाब में, अल्लाह की बाजपुर्स में, अल्लाह की अकाउंटेबिलिटी में ये दो खसूसियात नुमाया के सामने आती हैं। अल्लाह के सिवा, अब इसका मतलब क्या है? हिसाब लेने के लिए अल्लाह काफी है, किसी और हेल्पर की, सपोर्टर की, किसी सिफारशी की उसमें गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है। और आप अगर इन आयात को कुरान में जाके देखें तो जहां पे अल्लाह सुब्हाना ताला बतौर हसीब अपने काफी होने का जिक्र करते हैं, वो वाली आयात है जहां पे अच्छे अमाल का हिसाब हो रहा है, जहां पर लोगों की अच्छी एफर्ट्स जो है, अच्छी काविशें, अमाले सालेहा जो है, उनको कदर नहीं नजर आ रही, उनका बदला नजर नहीं आ रहा। वहां पे अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं अल्लाह अल हसीब मौजूद है और वो काफी है, वो तुम्हें तुम्हारी इस अच्छी एफर्ट का बदला देंगे। और इसी तरह से जब कहीं पे किसी बुरे अमाल का जिक्र हो रहा है, अल्लाह सुब्हाना ताला वहां पे हमें बताते हैं कि अल्लाह ऐसे अमाल का हिसाब लेने में देर नहीं करते। कोई भी अल्लाह सुब्हाना ताला के कवानीन को तोड़ के, उसकी दी हुई नेमतों का गलत इस्तेमाल करके ये नहीं समझे कि अगर उसको हिसाब नहीं लिया जा रहा, उसका हाथ नहीं रोका जा रहा, तो क्या उसमें बहुत देर है। अल्लाह सुब्हाना ताला जल्द ही उसको इसका बदला देंगे। अच्छा, इसके साथ रिलेटेड एक चीज ये है कि किन चीजों का हिसाब होगा। कुरान करीम हमें इस मामले में हमारे अकीदे को बिल्कुल क्लियर, साफ रखता है, खोल खोल के हमें बताया जाता है। सूरत लुकमान में अल्लाह सुब्हाना ताला बताते हैं कि राई के बराबर कोई अमल होगा ना, वो भी सामने ले आया जाएगा। उसके बाद जो है ज़लज़ाल में हमें बताया गया जर्रे के बराबर अच्छा अमल जो है वो भी सामने आ जाएगा, और अगर जर्रे ही के बराबर बुरा अमल होगा तो वो भी सामने आ जाएगा। मतलब ये है कि दुनिया के अंदर आपकी एफर्ट का लेवल कुछ भी है, अगर अच्छा है और आप समझ रहे हैं कि उस बहुत छोटी सी अच्छाई है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला छोटे होने की वजह से उसको जाया नहीं करेंगे। और अगर कोई बुरा अमल जो है वो इस वजह से कर रहा है कि छोटी सी तो बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह सुब्हाना ताला उसको भी छोटा सा नहीं लेते, क्योंकि अल्लाह का हिसाब बहुत, अल्लाह के हिसाब में एक और चीज जो ये है, वो बारीकी से हिसाब करेगा, डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स तक जाके अल्लाह सुब्हाना ताला, ताकि किसी के साथ उसके बदले में कोई ज्यादती ना हो। अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतरीन बदला अता फरमाएंगे। यहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे सामने तो हर तरह की एफर्ट्स हो रही हैं, अच्छी एफर्ट्स भी हो रही हैं और बुरी एफर्ट्स भी हो रही हैं। हिसाब तो कहीं पे हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट, कॉमन तो नहीं, बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट जो कि अब कॉमन भी हो रहा है, कर्मा का है। वो क्या है, आप में से किसी को पता है कर्मा क्या होता है? जो आपने अमल किया है, जैसे सपोज किसी के साथ अगर अच्छाई की है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी मुश्किल में आपके लिए भी ऐसा आसानी कर देगा कि आपके लिए अच्छाई हो जाएगी। कर्मा जो जिसको कहा जा रहा है कि जो आप करोगे आप उसका बदला भी पालोगे। और दूसरी जगह पे ये भी है कि कुछ जो मैंने पढ़ा था कहीं पे, जो अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इस दुनिया में
اپنی معافی کی توفیق ہی نہیں دے رہے تاکہ ان کے اوپر وہ کرما کا اثر بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ ظاہر اللہ نے حساب والے دن ان سے حساب لے گا. یہ سمجھ نہیں آئے. جی ٹھیک ہے، آپ نے جو کانسیپٹ بتایا وہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے، کیونکہ الحمدللہ ہم تو سب ایمان والے ہیں نا، ہم تو سب قرآن والے ہیں، ہماری جو تعلیمات ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، ان کے اندر کرما کا کانسیپٹ ہے، فٹ ان ہوتا ہے وہ؟ جی نہیں. سبحان اللہ، انشاءاللہ. کیونکہ جزا سزا اللہ کے ہاتھ میں. اگر کسی کو کوئی پنشمنٹ ہوئی ہے، کوئی تکلیف پہنچی ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں کہ یہ اس کو کسی عمل کا کرما ہے؟ یا کسی کو کوئی بینیفٹ ملا ہے، کوئی بلندی عروج ملا ہے، ہم کیسے جج کر سکتے ہیں یہ اس کی کسی نیکی کا صلہ ہے؟ ماشاء اللہ. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ہمارے جو عقائد ہیں ایمان والوں کو، جن کے اوپر بار بار جج کیا جاتا ہے، بار بار پوچھا جاتا ہے، جن کی تعلیم ہمیں پورے قرآن میں دی جاتی ہے، دو بیسک بنیادیں ہیں اس میں. ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان باللہ، اور ایک ایمان بالیوم الآخرہ. اگر ہر چیز کا حساب کتاب، ہر چیز کا نتیجہ اسی دنیا میں آنا ہے، جو کہ کرما کہتے ہیں جس کو، تو پھر یوم آخرہ کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں. یہ ان لوگوں کا کانسیپٹ ہے جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایک دن مقرر کیا گیا ہے جو کہ حساب کتاب کا دن ہے، یوم حساب ہے، یوم الدین ہے، وہ یوم قیامہ ہے. ہر چیز کا کرما کی شکل میں نظر نہیں آئے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مہلت دی ہے. اب اس کی ریزن ہم بڑے اچھی طرح سے جانتے ہیں. کیوں نہیں ہر چیز کا امیڈیٹ فوری نتیجہ سامنے آتا؟ کیوں نہیں بدلہ پورا اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا، اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، کیوں نہیں دیتے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ اعمال جو ہیں، بہت سارے اعمال، ان کے نتائج فوری ہیں ہی نہیں. آپ نے ایک چیز کی اور آپ کو لگا یہ چیز کرنے سے وہیں پہ ختم ہو گئی، اس کے جو آثار ہوں گے، جو بہت دیر تک جو ہے اس کے ایفیکٹس چلیں گے. جب تک اس عمل کی کتاب بند نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا حساب ہونا بے انصافی کی بات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے حساب کا ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس دن کو مکمل اپنے اختیار میں رکھا ہے. جیسے یہاں پہ دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو دے دیا نا چھوٹے چھوٹے اقتدار اور اختیار، ایسا کوئی بھی اس دن اللہ کے اختیار میں شامل نہیں ہوگا. اس دنیا میں بھی نہیں ہے، لیکن غیب کے اس دھوکے کی وجہ سے جو دنیا کا دھوکا بنایا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہے. قیامت کے دن تو یہ دھوکا بھی ختم ہو جائے گا. اس دن کا مالک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور دنیا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس حساب کا کچھ حصہ سامنے لا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا، اور عام طور پہ وہ کون سا ہوتا ہے؟ ان اللہ سریع الحساب. جو غلط چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف قوموں کے اوپر، امتوں پر جو عذاب بھیجے، قرآن کریم میں ان کے لیے حسبان کا لفظ استعمال ہوا ہے. وہ کہیں نہ کہیں حساب کے ہی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کیا، کیونکہ برائی کو آپ لنگر آن نہیں کر سکتے قیامت تک کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو بک تھی وہ وہی کلوز کر دی. لیکن ان جنرل جو پرنسپل ہے وہ کیا ہے کہ حساب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دن مقرر رکھا ہے، اور اس دن کو اللہ ہی جو ہے وہ قہار ہوگا، اللہ ہی کے پاس سب اختیار ہوگا. اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کا حساب کتاب کریں گے، اور ہم بڑی اچھی طرح سے پورا جو اس دن کی جو سیٹ اپ ہے وہ جانتے ہیں. نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان رکھا جائے گا، اور اس کے اندر دیکھا جائے گا اب کس کا کیا حساب ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں نتیجے کے اعتبار سے دو طرح کے حساب ہوں گے. ایک حساب ہوگا جس کو سوء الحساب کہا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ رعد کی آیت نمبر 8 ہے، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اس میں فرمایا، ان لوگوں کی بات کی جو اللہ کی نافرمانی کے لیے اس دنیا میں نافرمانی چوز کرتے ہیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے برا حساب لیا جائے گا، ان کی طرف سے بری طرح حساب لیا جائے گا، ان سے سخت پوچھ گچھ ہوگی، سخت طریقے سے ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور یہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ اور جگہوں پر بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، جیسے سورۃ روم کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے بتایا کہ برا انجام ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں برائی کی ہوئی ہوگی.
हिसाब उनसे बुरी तरह लिया जाएगा जो नाफरमानी के रास्ते पे चलेंगे। तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला उनसे उनकी एक एक चीज का हिसाब लेंगे। अच्छा, इस सवाल हमने पीछे एक ये भी रखा था कि हिसाब किन चीजों का होना है। सूरत तकासुर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि आज के दिन तुमसे तुम्हारी नेमतों का भी हिसाब होना है। ठीक है, और जरा हम इसकी रोशनी में इंशाल्लाह ताला अच्छा इसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। लेट्स फिनिश दिस फर्स्ट कि एक तो हिसाब होगा जो बुरे काम करके गए हैं उनसे सख्त हिसाब होगा, और दूसरा जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बताते हैं अच्छा वाला हिसाब, हुस्ना हिसाब होगा। सू के अगेंस्ट जो जिद है उसकी वो क्या है, अच्छा हिसाब होगा। उनके बारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 202 और 201 आयत अगर आप लोगों को याद हो, कल हमने उसका जिक्र किया था, वो आपकी और मेरी दुआ है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको नसीहत की है कि हमें करनी चाहिए। ईमान वाले की दुआ ये होती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। इस दुआ के बाद अगली आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह हिस्सा पाएंगे। अपनी कमाई के मुताबिक दोनों जगह अच्छा वाला हिस्सा पाएंगे, क्योंकि हमने पीछे देखा कि उनकी कमाई क्या हो रही है, दुनिया में भी हसनात और आखिरत में भी हसनात। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कहते हैं कि अल्लाह को हिसाब चुकाने में देर नहीं लगती। हुस्ना हिसाब जो होता है ना, उसकी दो खसूसियात हमें कुरान ही में पता चलती हैं। एक है युसरा हिसाब, युसरा आसान, और उससे भी आला दर्जे पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे लोगों को बगैर हिसाब जो है वो रिज्क दिया जाएगा, बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल किया जाएगा। बगैर हिसाब के ऐसे लोगों को जो उनको दुनिया के अंदर मुश्किलें पेश आई, जो दुनिया के अंदर उनको नेमतें दी गई, उनके बारे में हिसाब किताब नहीं किया जाएगा। अब ये बगैर हिसाब के जो जाता है उसके लिए अल्लाह ताला उसकी बगैर हिसाब की क्या तफसीर हमें बताई जाती है, बगैर हिसाब। और ये अच्छे हिसाब की एक किस्म है, आला दर्जा है उसका कि कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उनका हिसाब ऐसे लेंगे कि कोई उनसे हिसाब ही नहीं लेंगे। अब उस बगैर हिसाब में कौन कौन सी चीजें आती हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके इस्तेहकाक से ज्यादा देगा, जो कमाई की है उन्होंने, जो अमाल है उनके, उससे ज्यादा देंगे। और ये वाला प्रिंसिपल हमें बहुत सारी जगहों पे खोल खोल के बताया गया। बताया ना हमें कि कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे, और अल्लाह फिर उस कर्जे हसना को कैसे वापस करेंगे, इसके बदले में कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के देंगे। सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या बताया कि ये जो लोग हैं इनका खर्च तो ऐसे है कि जैसे एक बाली हो और उसके ऊपर जो है वो एक दाने से एक पौधा निकले जिसपे 7 बालियां हों और हर के अंदर 100 दाने फिर से निकल आए, एक दाने से 700 गुना और उससे भी ज्यादा करने के ऊपर वो पूरी तरह कादिर है। ये बगैर हिसाब है। आपने तो एफर्ट एक दाने की थी, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला 700 दानों का हिसाब और अजर देगा तो इसका मतलब क्या है कि कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर जिसे चाहता है उसे अता करता है और उसे वापस नहीं लेता। सुभान अल्लाह, इस कदर अता करता है बगैर हिसाब में की तफसीर में ये भी है कि इस कदर अता करता है कि इंसान के लिए शुमार करना जो है वो मुमकिन नहीं रहता। बगैर किसी तंगी के देता है, उसमें रुकावट नहीं आती। उसके अलावा लोगों के अंदाजे से ज्यादा देता है और अपनी मसलहत के मुताबिक भी देता है कि लोगों के को उनको उनकी अंदाजा भी से भी ज्यादा हो जाता है। अल्लाह की अपनी उसमें हिकमत होती है जिस तरह से वो देता है। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि मोमिन को जो कुछ देता है, ईमान वाले को जो देता है वो बगैर हिसाब होता है। शर्त यह है कि ईमान वाला वो ईमान वाला हो जो कुरान ने डेफिनेशन दी है। हमने तो टाइटल लगाए हुए हैं ना बस ईमान वाला, क्योंकि ऐसा ईमान वाला जो है वो तो इस अकाउंटेबिलिटी से डरता होगा, वो तो मुहासबा करने वाला होगा अपना, तो फिर उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्यों मुहासबा करेंगे। मोमिन को अल्लाह सुब्हानहू तआला जो कुछ देता है उस पर मुहासबा नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि मोमिन दुनिया में कदरे कफायत हासिल करता है, वो तो लेता ही उतना जितना दुनिया की जरूरत है उसको, उससे ज्यादा की तो वो ख्वाहिश रखता है, ना ही वो मांगता है ना ही वो लेता है। आ जाए उससे ज्यादा तो उसको अल्लाह की राह में खर्च कर देता है। तो अब अल्लाह ताला किस चीज के लिए हिसाब लेंगे उससे। फिर जो हासिल करता है जायज तरीके से हासिल करता है, उसके लिए किसी की
हक तलफी नहीं करता, कोई अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी नहीं करता, तो अल्लाह को ने तो ये दुनिया दी ही इसीलिए है कि इसको इस्तेमाल करो और अल्लाह की नाफरमानी ना करो, अल्लाह का इनकार ना करो, अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ना करो। तो अगर कोई ऑलरेडी उसके हिसाब के मुताबिक खर्च कर रहा होगा तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको बगैर हिसाब बदला देंगे। और उसके बाद क्या है कि खुद मोमिन जो है, ईमान वाला, वो तो अपना मुहासबा खुद करता रहता है, सुभान अल्लाह। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला उसको आखिरत में बगैर हिसाब, तो और ये हसना हिसाब की आला तरीन शक्ल होगी। उसके बाद जो उससे कम दर्जे में हमें बताया गया वो युसरा हिसाब है, हिसाब होगा हल्का फुल्का सा। और उसके लिए उसको समझाने के लिए हमने सतन शिकाक में आयत पढ़ी है ना कि जिसको दाएं हाथ में दे दिया गया उसका अमाल नामा, उससे तो हिसाब आसान होगा। और उसकी वजाहत जो है वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है जिसमें उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे भी हिसाब लिया जाएगा वो मारा जाएगा। तो हजरत आयशा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो ये इरशाद फरमाया है कि जिसका नामा माल उसके सीधे हाथ में दे दिया गया उससे हल्का हिसाब होगा। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हल्के हिसाब की वजाहत क्या की कि वो तो सिर्फ अमाल की पेशी है, अगर उसमें से किसी भी चीज की पूछगछ शुरू हो गई तो वो मारा जाएगा। आप ये सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी नेमतें हमें दी हैं, जिस तरह का हमें इस दुनिया के अंदर हमारा रहन सहन रख दिया है, क्या हम किसी भी एक नेमत का, किसी भी एक अता का जो है हक पूरा अदा कर पाते हैं? अभी क्या होगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला देखेंगे इन जनरल नामा या माल नेक जो हैं वो बेहतर हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे ओके, मजीद फाइन डिटेलिंग पूछगिछ में नहीं जाना और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। ये युसरा हिसाब है। और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए बहुत ज्यादा दुआ किया करते थे और हम सबको भी बहुत दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमारा हिसाब आसान कर दे। जब भी उसकी नेमतों का जिक्र आए, उसकी किसी नेमत का ख्याल आए जो कि हमें कमी आता है, ज्यादा आना चाहिए। अभी आपको एक बहुत प्यारा वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से, शायद मैंने इस क्लास में भी शेयर किया हो, क्योंकि मेरे दिल को बड़ा टच करता है, मैं बहुत ज्यादा उसका रेफरेंस देती हूँ, तो अभी फिर से हम उसको कर लेते हैं। जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों भूखे प्यासे आए और कई कई दिन के फाके से, कोई एक दिन का, कोई 2 दिन का फाका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लेके जो है वो एक मुतमव्वल सहाबी जो हैं जिनके पास माल था उनके पास चले गए और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फाके से हैं, तो अपने किसी दोस्त के यहाँ चले गए। मुख्तलिफ रवायात में मुख्तलिफ नाम है, कहीं पे अबू दर्दा का नाम है, कहीं अबू दादा का नाम है, कहीं पे हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उनका नाम है। उनमें से किसी के पास गए जिनका बाग था और उस बाग में जाके बैठ के उनको कहा कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाएं। तो वो अपने बाग में से खजूरों का एक गुच्छा पूरा तोड़ के ले आए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहब को, साथियों को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से खजूरें खाई और फिर उन बाग में एक कुआं भी था और वहां से पानी लाके उनको पिलाया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के बाद उनसे पूछा कि तुम हमारे लिए खजूरें तोड़ के क्यों नहीं लाए, क्यों ये पूरा गुच्छा तोड़ के ले आए हो? तो उन्होंने कहा कि इसमें पकी हुई खजूरें भी थी और कच्ची भी, तो मुझे पता नहीं था कि आप इसमें से क्या खाना पसंद करेंगे, इसलिए मैं गुच्छा ले आया कि आपको जो चाहिए आप इसमें से खा लें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें खाने के बाद, पानी पीने के बाद यही दुआ की, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु साथ थे और वो दीन को सीखने के मामले में बहुत ईगर थे। उन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नेमत, हमने तो इतने फाके के बाद ये 2 खजूरें खाई और ये पानी पिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही तो नेमत है, इससे पहले क्या हालत थी उमर, और हमें तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उससे ज्यादा दिया जितनी हमारी हाजत और तलब थी। हमारे सामने चॉइस आई कि हमने अपनी खजूरें अपनी मर्जी से चुननी थी। सो इट्स मोर देन व्हाट वी वर आस्किंग फॉर। क्यों नहीं होगा इसका हिसाब? तो अब इसके मुताबिक अपने घरों की हालत देखें, अपनी नेमतों को देखें और फिर सोचें कि हमें कितनी जरूरत है इस दुआ को मांगने की कि अल्लाह हमारा हिसाब जो है वो आसान कर दे। हमारे से डिटेल ना किसी भी नेमत के बारे में पूछे कि कैसे इस्तेमाल किया और कितनी दी थी, क्या हक अदा किया। अब इंशाअल्लाह ताला यहां से हम चलते हैं अमली नुकात की तरफ। अमाल का बदला और हिसाब सिर्फ अल्लाह के जिम्मे है। हमें कभी कभी इस दुनिया के अंदर, कभी कभी क्या, चूंकि मैं आप ही में से हूं,
हम औरतों को बहुत ही आदत है। हम क्या चाहते हैं, हमारी कोशिशों को, और कुछ जो है ना वो अक्सरियत, आजकल तो ये बहुत ज्यादा अक्सरियत का जो प्रेशर होता है, कुरान में भी बार बार बताया जाता है हमें कि अक्सर लोग जो हैं वो गलत रास्ते पे होते हैं और प्रेशर डाल रहे होते हैं। तो आजकल तो फेमिनिज्म और ख़वातीन के हकूक और ये सब कुछ इतना ज्यादा है कि हमें अपनी एफर्ट्स को की एक्नॉलेजमेंट चाहिए होती है, जबकि बार बार हमारा अकीदा किस चीज के ऊपर बिल्ड किया जा रहा है कि आपकी एफर्ट्स अल्लाह के लिए होनी चाहिए और उसका बदला भी अल्लाह ही देगा। दुनिया में अगर किसी एफर्ट का बदला मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, तो उसमें खदशा होता है इस चीज का कि कहीं आखिरत के बदले में तो नहीं मिल रही है। क्योंकि हमने कल किस क्लास में किया था, कल परसों किसी क्लास में पिछली में किया हमने कि दुनिया जो है वो उन लोगों को मिलती है जो दुनिया के लिए अमल करते हैं, और अगर दुनिया में आपको उसके बदले में वो मिल रहा है जो आप चाहते हैं, तो कहीं उसके बदले में, इसलिए सहाबा कराम जो हैं वो बहुत डरते थे जब दुनिया मिलती थी। यहां तक कि एक सहाबी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा ये कि आप दुनिया नहीं चाहते, आपने कोई काम किया, कोई अमल किया और आपको लोगों से तारीफ नहीं चाहिए थी, आपने सिर्फ अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए किया, तो फिर वो आखिरत का हमारा जो अजर है उसका क्या होगा? अगर दुनिया ही में भी वो तारीफ और वो दुनिया मिल गई उसके बदले में। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर ईमान वाला अल्लाह के लिए कोई काम करता है और उसको दुनिया भी मिल जाती है, तो ये उसके लिए फिर खुशखबरी है, ये उसके लिए एक बोनस है, एक इजाफी एक चीज है उसके लिए। लेकिन उस इजाफी चीज को की फिर से एक नेमत है और उसकी फिर एक दोबारा से जिम्मेदारी है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस खुशखबरी को पाके आप इतने रिलैक्स हो जाएं कि फिर अपना असल अमल छोड़ दें और उसकी वजह से किसी तकब्बुर या उस कैफियत में चले जाएं। तो अपनी जो बेसिक हमारी जो माइंड सेट है वो किस पे होना चाहिए कि हमें जो भी अमल करना है, जो भी अच्छा अमल करना है, चाहे वो आपके घर के काम क्यों ना हो, चाहे वो आपका सबके लिए खाना पकाना क्यों ना हो, अल्लाह के लिए करना है। ये जिम्मेदारियां अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें दी हैं और इसका बदला भी हमें अल्लाह ही से चाहिए। हमारे लिए ये भी बोनस है कि अगर हमारा बनाया हुआ खाना खा के कोई अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो वो तो हमारे लिए हमारे नामा अमाल में एडिशनल जा रहा है। सो हमें उसके ऊपर जो है दुनिया की तारीफें दुनिया के बदले नहीं चाहिए। मिलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक और नेमत है, अगर नहीं मिलता तो हमें अल्लाह सुब्हाना ताला से पूरी उम्मीद है। अल्लाह को जब हम अल हसीब के तौर पे कनेक्ट होते हैं ना उसके साथ, तो जहां पर पहले भी हमने कर ली ये बात लेकिन मैं फिर से दोहराती हूँ कि जो हम अमल कर रहे हैं, जो हम नेकी कर रहे हैं, वो करने वाले के दिल को तसल्ली है इस बात पे कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरी इस नेकी को, मेरी इस खैर को जाया नहीं जाने देगा। और अगर कोई बुरा अमल कर रहा है, तो कोई बुराई कर रहा है, तो उसके ऊपर ये थ्रेट है, ये अल्लाह की तरफ से अंजार है उसके लिए कि मैं हिसाब लूंगा इसका। कहीं ना कहीं उसको रोकने के लिए, उसको चेक में रखने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला अपने हसीब होने को वहां पर बयान करते हैं। फिर उसके बाद हमें अपने अमाल का बदला लोगों से नहीं चाहिए, अपने अल हसीब के साथ हमारा कनेक्शन है, हमें उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा है, उसके हिसाब के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, और हम उससे भी ये दुआ करते रहते हैं कि हमें आसान हिसाब से गुजारना, हमारे साथ ऐसा हिसाब ना लेना जिसके बाद हम नुकसान उठाएं। फिर हमने अपना मुहासबा खुद करना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हम मुहासबा जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के सिवा कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन हम तो ये अल हसीब का नाम ही इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने हर नाम के बाद कहा कि हमें अपना मुहासबा इस नाम की रोशनी में करना है, अल्लाह की सिफ्त की रोशनी में करना है। मुहासबा अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं कर सकता, तो फिर हम कौन सा मुहासबा कर रहे हैं? यहाँ पे हम मुहासबा को बमानी तज़किया लेते हैं। हमने अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक करना है कि क्या इस नाम के वजह से कुछ अच्छी खसूसियात मेरे अंदर पैदा हुई, क्या इस नाम की वजह से कुछ बुराइयां जो थी मेरे किरदार का हिस्सा उनको मैं दूर करने में कामयाब हुई, क्या उसके लिए कोई सोच, कोई एक्शन प्लान मैंने बना लिया। हमारा मुहासबा जो है वो यहाँ पर तज़किया के मानों में, बदला के मानों में नहीं होगा, वो अल्लाह सुब्हाना ताला ही करेंगे। हमें अपनी बुराइयों के ऊपर, अपने गुनाहों के ऊपर भी खुद को सजा नहीं देनी, हाँ उनको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अपनी नेकियों के ऊपर अपने आप को रिवॉर्ड करने के लिए कोई बुराई करने नहीं चले जाना कि अब मैं थोड़ा सा, जो एक कॉन्सेप्ट चीट डे का बन गया ना
کہ मैंने पूरा वीक बड़ा अच्छा काम किया तो एक दिन जो है मैं बीच में अब मैं अपने आप को इनाम दूंगी उसके ऊपर, वो नहीं हम करेंगे। हमारा मुहासबा तज़किये के मानों में होगा कि हम अपने आप को चेक करते रहें कि क्या मैं सही ट्रैक पे हूं, क्या मुझे अपना मकसद तो नहीं भूला, जिस मकसद के लिए मैं इस दुनिया में आई हूं क्या मैं उस मकसद के साथ कनेक्टेड हूं। अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ मेरा जो ताल्लुक है, मेरा जो राब्ता है, वो रब और बंदे वाला कायम है और हर गुजरते हुए दिन के साथ उसमें मजबूती, गहराई, ऊंचाई आ रही है। इसीलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान का जो है वो मीनिंग पढ़ लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना व तआला उस शख्स से क़यामत के दिन हिसाब नहीं लेगा, ऐसा हिसाब नहीं लेगा जिससे उसको नुकसान पहुंचे, जिसने दुनिया में अपना मुहासबा खुद किया होगा। क्योंकि उस हिसाब का हमने पहले जरूरत इस्टेब्लिश की है ना, कि क्यों जरूरत ही क्यों थी, क्योंकि अगर हिसाब किताब का एक डर नहीं रखा जाएगा तो इंसान का नफ्स उसको बुराई की तरफ ले जाएगा, उसको नेमतों को अब्यूज करने की तरफ ले जाएगा। अब जिसने अपने आप को खुद उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा, खुद अपने आप को रोकता रहा कि मुझे ये नहीं करना, ये करना है, इस खराबी से बचना है, इस भलाई को अपने अंदर जो है वो पैदा करने की कोशिश करनी है। अगर जो खुद ये करता रहेगा तो उस हिसाब का मकसद तो ऑलरेडी पूरा हो गया। अब अल्लाह सुब्हाना ताला उससे यसीर हिसाब लेंगे, आसान हिसाब लेंगे। और इसी तरह से हमने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉल भी पढ़ते हैं। क्या फरमाया आपने कि अपना हिसाब खुद लो इससे पहले कि अल्लाह सुब्हाना ताला हिसाब ले। मुहासबे का वक्त है, अपना अपना हिसाब लीजिए। इस पूरे कोर्स से हमने क्या सीखा? अल्लाह सुब्हाना ताला की इन सिफात ने हमारे अंदर कौन कौन सी चीजें ऐसी पैदा की जो वो हमारे अंदर देखना चाहता था, हमें कौन सी ऐसी चीजों से रोका जो उसको नाराज करने वाली या उसकी तरफ से मना करता है। क्या अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ा? हमने पहली क्लास में कहा था कि सिफात को जानने से अल्लाह सुब्हाना ताला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होती है। क्या उसकी मोहब्बत में इजाफा हुआ? क्या अल्लाह सुब्हाना ताला के इन नामों को जान के उससे हमारी उम्मीद, उससे हमारा तकवा वो बढ़ा? क्या हमारे ईमान में कोई इजाफा हुआ? ये वो सारी चीजें हैं जो हमें खुद अपने लिए करनी चाहिए। इस कोर्स के हवाले से बात हो रही है तो इस कोर्स के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा हमें हमारा आई डोंट नो, लोगों ने सालाना अपने जो है वो बनाए होते हैं टारगेट्स, बनाते हैं ना लोग अपने रेजोल्यूशंस, क्या कहते हैं उनको, एनुअल रेजोल्यूशंस, न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। सालाना तौर पे हमारा मुहासबा, क्या मेरा ये साल पिछले साल से बेहतर था? माहाना मुहासबा, कि इस महीने में मैंने क्या किया। माहाना मुहासबा हमारा सिर्फ रमजान के महीने में होता है, बाकी सारे महीनों में 11 महीनों में मैं ख्याल नहीं आता। हफ्तावार मुहासबा, मिनिमम जो हमें करना चाहिए वो हमारा डेली मुहासबा है। वैसे तो ये होना चाहिए कि हमें हर अमल के दौरान अपना मुहासबा साथ साथ हमारा चल रहा हो, लेकिन जो हमें सिखाया गया वो क्या है कि जब आपका दिन मुकम्मल हो, अपने बिस्तर पे जाएं तो उस दिन का जायजा जरूर लें। आज मैंने कौन सा काम ऐसा किया जो मुझे अल्लाह से जोड़ने वाला था, कौन सा काम ऐसा किया जो मैं ना करती तो बेहतर था, उसके ऊपर मुझे तौबा करनी है, उसको मुझे सुबह उठ के उसकी कंपनसेशन करनी है, उसको फिक्स करना है। अगर मैंने किसी का हक मारा है, किसी के साथ ज्यादती की है, किसी के मामले में मेरे से ज्यादती हो गई है, उसको मुझे फिक्स करना है। अल्लाह से तौबा करके सोएं और उसको फिक्स करने का प्लान बना के सोएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका आसान मुहासबा करे। अल्लाह ताला हमारे लिए दुनिया के लिए हसनात और आखिरत की हसनात हासिल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी नियतों में इखलास और हमारे अमाल में जो है वो इखलास पैदा कर दे।
बारकल्लाह। एक बात जी, अभी हम पढ़ते हुए आप कह रहे थे कि अल्लाह हमसे किन किन नेमतों का हिसाब लेगा, फिर आपने कहा था कि बाद में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जी, वो कहीं वो वही सवाल तो नहीं जो कि अभी उम्र जवानी मिली, कहाँ गुजारी, कहाँ से कमाया, कहाँ से खर्च किया, वक्त किन कामों में खर्च किया, यही वो सवाल वो जवाब तो नहीं? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें बता दिया ये 4 या 5 नेमतें हैं जिनके बारे में सवाल किए बगैर इब्ने आदम के कदम हिलेंगे नहीं हशर के मैदान में। सो तकासुर की आयत का मैंने रेफरेंस दिया जहाँ पे अल्लाह ताला ने कहा सुम्मा ला तुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, नेमतों के बारे में पूछा जाएगा आज के दिन। और उसके अलावा आप देखिए वक्त को कैसे इस्तेमाल किया, उम्र को कैसे इस्तेमाल किया, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ खर्च किया। क्या अल्लाह ताला ये नहीं पूछेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी मिली थी आपको समर ब्रेक के अंदर अल्लाह के नामों के ऊपर गौर और फिक्र करने की, अल्लाह के नामों के साथ जुड़ने की, अल्लाह को पहचानने की, अल्लाह को तारुफ हासिल करने की, उसको कैसे यूज किया आपने? क्या हमने उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया? तो हर वो नेमत जो अल्लाह ताला हमें देते हैं इस दुनिया में, हर वो मौका जो अल्लाह ताला अपने साथ जुड़ने का हमें देते हैं, अल्लाह ताला उसके बारे में सवाल करने का पूरा हक रखते हैं। वो अगर चाहें तो उसके बारे में सवाल करेंगे। तो हमें तो अपनी जिंदगी इसी सोच के साथ गुजारनी है ना कि अगर मुझे इस नेमत का जवाब देना पड़ा तो क्या मैं इसको फुल पोटेंशियल तक अपने जो है इस्तेमाल कर रही हूँ? क्या इस नेमत का मैं जवाब दे सकती हूँ कि हाँ मैंने कोशिश की थी या अल्लाह? इसमें कोई शक नहीं है कि हम औलादे आदम हैं, हमारी कोशिशों में कमियां रहेंगी, लेकिन एक गफलत का, लापरवाही का, बेनियाजी का रवैया जो है वो आपको मुझे सूट नहीं करता। हम फकीर हैं, हम मोहताज हैं, हम गुलाम हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला से बेनियाजी हम कैसे, उसकी नेमतों से बेनियाजी, उनकी नेमतों के हिसाब के से लाताल्लुकी हम किस तरह से इस रवैये के साथ जी सकते हैं? और अगर जिएंगे तो उसके बाद अल हसीब के पास पूरा हक है कि वो इसके ऊपर सजा देगा। कर्मा को थोड़ा सा दुनियावी लिहाज से आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। जी राना बहन, असल में कर्मा जो है ना ये हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है। वो ये कहते हैं कि आपका अमल जो है वो दुनिया के अंदर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आखिरत की जवाबदेही पे तो यकीन ही नहीं है ना उनका कि आखिरत में भी कुछ होगा। और उसके साथ अब ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि अब दुनिया के अंदर दहरियत का जो एक तस्वुर है ना वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। लोग दुनिया ही को जो कुछ है यही है, यू लिव ओनली वंस, दिस इज द लाइफ, ओनली लाइफ। अब इसको ज्यादा इस मटेरियलिज्म को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलने की वजह से ये कॉन्सेप्ट ज्यादा पॉपुलर हो गया। अब आप हर वीडियो में, हर मीम में, हर तीसरे यूट्यूबर को इसके बारे में बात करते हुए देखेंगे कि वो कहते हैं जो जिसने किया उसके सामने आ जाता है, अच्छे मानों में भी बुरे मानों में भी। लेकिन हम इस बात के ऊपर यकीन रखते हैं कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की मर्जी है, वो अगर चाहे। और हुस्बान हम जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में बुरे अमाल का बदला लोगों को दिखा देते हैं, उम्मतों को दिखा देते हैं, पूरी कौमों को दिखा देते हैं जब वो उनकी नाफरमानियां हद से बढ़ती हैं। लेकिन अच्छे अमाल के लिए आखिरत तक का इंतजार करना पड़ता है। इट कुड बी कि अल्लाह ताला उसका कुछ हिस्सा आपको दुनिया में दे दे, जैसे कि हमने इस बकरा की आयत नंबर 2 से 2 में देखा है कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में भी हिस्सा देंगे, दुनिया में भी हिस्सा देते हैं, और ज्यादा बड़ा अजर तो उनके लिए आखिरत में है। ठीक है, तो ये जो लफ्ज हम लोग मकाफात अमल इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भी इसी में आएगा, करुमा में भी आएगा? मकाफात अमल भी इसी तरह के मीनिंग में है। हर चीज मकाफात, दुनिया मकाफात अमल नहीं है। आपका मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? ये दुनिया इम्तहान गाह है। यहाँ पे अल्लाह ने हमें इसलिए भेजा है कि देखे कौन ऐसा अमल करता है, तो उसमें मकाफात अमल तो नहीं कहीं पे भी फिट होता। तो सिस्टर मैं यही बात रखना चाह रही थी कि ये कहना फिर मतलब है कि अच्छी बात नहीं है। कभी दिल में कभी आए या बंदा कहता है कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था तो अब इनकी ये हालत है, तो अल्लाह रहम करे, ऐसा नहीं कह सकते। यही तो नहीं कह सकते ना जी। हमने अच्छे हो तो कहते हैं ये कोई नेक काम इसके आगे आ गया, या इसके माँ बाप की दुआओं तो ठीक है, लेकिन कहते हैं कि कोई नेकी आगे आ गई और इसका ये काम अच्छा हो गया। लेकिन नेकी के बारे में तो हमें कहा गया कि अगर आप नेक गुमान कर सकें तो वो आप कर सकते हैं,
लेकिन किसी के बारे में बुरा गुमान करना कि ये उनके साथ ये इम्तिहान, ये आजमाइश इसलिए हुई है, उन्होंने कोई गुनाह किए थे, वो हम नहीं कर सकते। अल्लाह ने वो इम्तिहान दे के उनके दर्जात बुलंद किए हैं, वो तो उनके लिए खैर है, हम उसको बुरा बदला क्यों समझते हैं। आपने क्लियर कर दिया, कार्मा पे तो यकीन नहीं है, लेकिन वो यही बात जो इन सिस्टर ने आपसे पूछी ना, तो यही था जो सुनने में आता है कि आपने यूं किया तो फिर ऐसे हो गया। और फिर कुछ लोगों के लिए अल्लाह ताला मतलब ढील दे देते हैं कि भाई जो मतलब उनको इस चीज की तौफीक ही ना हो कि वो अल्लाह से माफी की वो मांग सके। और मतलब ये सुनी जो बातें इतनी अच्छा, ये मेरी बहना ये कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल कुरान के कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें सूरह बकरा में बिल्कुल कुरान के आगाज में ही बता दिया कि कुछ दिल होते हैं जिन पे मोहर लग जाती है, लेकिन क्या आप और मैं दिलों को देख रहे हैं? नहीं, तो नहीं देख सकते ना, ही देख रहे हैं ना, वो अल्लाह ताला ही देख सकते। हम हसीब नहीं बन सकते। यही है ना कि सिस्टर के हम इसको नहीं फाइंड कर सकते ना, हमें नहीं कहना चाहिए जी। तो ये तो अल्लाह और बंदे का आपस का मामला है ना। हम लोग जो अपना ओपिनियन या कुछ भी बात शेयर कर देते हैं या किसी को कह देते हैं या घर में या किसी को कि इसके साथ ऐसा हुआ, तो ये नहीं कहना चाहिए, हमें नहीं कहना चाहिए। इवन यहाँ तक भी हमें हमारी जो तालीम है वो ये है कि आप जाहिर के मुताबिक फैसला करें, कौन कैसे अमल कर रहा है आप उसके मुताबिक उसको जो है वो उसके साथ मामलात करें। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा है कि कोई वफात पा जाए तो हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं ये पक्का जन्नती है, फलां जो है वो तो पूरा जहन्नमी था। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये किसी इंसान को इख्तियार नहीं दिया कि किसी के जन्नत और जहन्नुम के फैसले कोई करे। हमें टाइटल लगाने की का शौक होता है, इसलिए हम जबरदस्ती लगा रहे होते हैं। अल्लाह ने ये इख्तियार किसी को नहीं दिया। और कहीं ना कहीं जब कुछ लोग इस इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? अल्लाह की हिसाब अल्लाह ने लेना है, हम उसकी मतलब के उस चीज में मुदाखलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप लोग वो शिर्क हो गया ना कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल, आप अल्लाह की उस सिफ्त में किसी को शामिल कर दिया आपने, तो वो इंसानों के तो एटलीस्ट ये ईमान वालों के और कुरान वालों का तो ये तरीका कार नहीं होना चाहिए बात करने का। फिर ये तो फिर बात हो गई ना, फिर मुहासबे के ऊपर आ गया ना, फिर हर अमल के बाद अपना मुहासबा तो करना है। फिर बिल्कुल मुहासबा जो है ना वो भी एक बिल्कुल आपके जैसे तौबा का अमल होता है ना, आपका पर्सनल, बिल्कुल ये हम सब के दिलों में हर वक्त चुपके चलता रहना चाहिए। हम अपने आप को देखते रहें। आप में से हम में से कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैं हर वक्त सब कुछ ठीक कर रही हूँ, और अगर मैं अपने आप को चेक नहीं करूंगी तो जो चीजें मैं खराब कर रही हूँ आई विल कीप डूइंग दैम। तो जैसे हमारी तौबा मुस्तकिल हमारी होनी चाहिए, जैसे अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ मुस्तकिल होनी चाहिए, ऐसे हमारा मुहासबा और तज़किया जो है वो भी मुस्तकिल होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हम अपने आप को चेक करते रहें कि कहीं हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, कहीं हम कोई गलत अमल नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद गलतियां नहीं होंगी। अब हमें इल्म आ गया, हमें पता चल गया इन चीजों का, तो अब हम नहीं करेंगे। लोग समझते हैं, देखिए हमें से हर कोई ये समझता है कि हमने किसी कोर्स में हिस्सा ले लिया ना, रजिस्ट्रेशन करा ली है तो कमाल हो गया, अब तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली जब इल्म आ जाता है उसके बाद असल काम शुरू होता है। अब आपको पता चल गया, अब आपको इस पे अमल करना है। असल जंग जो है उसी वक्त शुरू हो जाती है, उसके बाद शुरू सुभान अल्लाह के बाद ही शुरू होती है। नफ्स की और आपके अपने इसकी ईमान की जो जंग है ना उसी वक्त शुरू हो जाती है। जन्नतों के बाद इसी जंग की जीत पे किए गए हैं। अच्छा सिस्टर लुबना हियर, मेरा एक क्वेश्चन है। आई सी मेनी पीपल के जिनकी जिंदगी में कोई भी आजमाइश आती है, मेरे खुद फैमिली में भी चीजें ऐसी होती हैं कि बंदा जो है एकदम से जैसे कोई आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है, फिर इंसान कहता है कि जो है बहुत डीमोटिवेट हो जाता है। तो उसमें क्या करना चाहिए, और अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाता है, हाँ मैंने डेफिनेटली कुछ ना कुछ किया हुआ है इसलिए इसका रिजल्ट जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन आखिरी स्लाइड में हमने ये देखा है कि मुहासबा अपना जरूर करना है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई जरूर करना है, क्योंकि वो पहला स्टेप है इस्लाह की तरफ जाने का। आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हमसे क्या मिस्टेक हो रही है, आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके ऊपर सजा देना, डीमोटिवेट हो जाने का मतलब ये है कि आप उस पर खुद को सजा दे रहे हैं।
वो इख्तियार अल्लाह ताला ने हमें खुद के लिए भी नहीं दिया कि आप कहें कि ये काम मेरे से खराब हुआ अब तो मैं बैठ गई। तौबा का जो दरवाजा अल्लाह ताला ने खुला रखा हुआ है वो उस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखने के लिए रखा हुआ है कि आपसे कोई गलती हुई है, आइडेंटिफाई दैट, एक्सेप्ट दैट, अल्लाह से माफी मांगे उसकी, फिक्स एनी बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट एंड मूव ऑन। तौबा असल में पॉजिटिविटी का दरवाजा है ताकि वो जो गलती हमने की है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना आए। ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये गिल्ट जो है, अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं उसको माफी मांगे। जब आप किसी चीज की माफी मांग लेते हैं, डोंट यू रिमेंबर द फीलिंग्स जो आपको उसके बाद, जो तौबा करने के बाद आप फील करते हैं, स्पेशली जब आप अल्लाह सुब्हाना ताला के अत्तवाब, अल गफूर, अल गफ्फार नामों को पढ़ चुके हो। अल्लाह सुब्हाना ताला के तो इस चीज के ऊपर कादिर हैं कि उसको आपके नामा इमाल से मिटा चुके हो आपकी तौबा को देखते हुए। आपने उसकी इस्लाह इतने अच्छे तरीके से की कि उसके असरात अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिरे से खत्म कर दिए। उस पॉजिटिविटी के दरवाजे का नाम तौबा रखा अल्लाह ताला ने। हमने अपना मुहासबा जरूर करना है, अपनी गलतियों को देखते जरूर रहना है, लेकिन उनके ऊपर अपने आप को पनिश करने का इख्तियार हमारे पास नहीं है। ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट का जो सिलसिला ना, वो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ। तो अपने आप को इसी सोच के साथ हम निकालेंगे। जब हम अल्लाह के इन नामों को सही से समझेंगे ना, इन कॉन्सेप्ट्स को अपने बिल्कुल क्लियर करेंगे जो हमने कोशिश की इस क्लास में, और इंशाल्लाह ताला इल्म का सफर जो है वो रुकता नहीं है। आज हमारी आखिरी क्लास है तो, लेकिन ये सफर हमारा रुकता नहीं है। हम मजीद भी ऐसी क्लासों के साथ जुड़े रहेंगे, इल्म की मजलिसों के साथ जुड़े रहेंगे, नए कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराएंगे किसी ना किसी तरह। इल्म जो है, हमने ना दुनिया के मामले में इल्म को भी समझा और गलत समझ लिया कि जब आप कोई डिग्री ले लेते हैं इल्म खत्म हो जाता है वहां पे, अब उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इल्म तो आप गौर से, क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हुआ है, गौर से गौर तक, जब तक आप जिंदा इस सफर को भी जारी रखना है इंशाअल्लाह ताला। तो जैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जिंदा रखेंगे, अपने अंदर फ्रेश रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस तरह की किसी नेगेटिव सिचुएशन में नहीं जाएंगे। और वहां से अगर अल्लाह ताला ने हालात किसी ऐसे में डाल दिया, हम निकलेंगे इसी पॉजिटिविटी के साथ। मुझे सूरत आल इमरान याद आ गई है कि जंगे ओहद में मुसलमान जो है मैदान जंग के अंदर इस डिमोटिवेशन का शिकार हो गए थे। उनके साथी जो है मैदान जंग में से छोड़ के चले गए थे। उनको लगा इतनी बड़ी फौज सामने आई है और हमारी स्ट्रेंथ तो और भी कम हो गई है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर शहीद होने की अफवाह फैल गई। बहुत सारे सहाबा को ये लगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए तो हम क्या करेंगे अब। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो उन्होंने अपना काम कर दिया, अब तो इस्लाम को हमने जिंदा करना है। वो पहले से भी ज्यादा जवामर्दी के साथ, बहादुरी के साथ लड़े। तो ये जो सिचुएशंस होती हैं, जो बैड सिचुएशंस या मुश्किल हालात जो होते हैं, वो तो एक्चुअली आपके अंदर का पोटेंशियल सामने लाने के लिए होते हैं। क्लीशे है, बहुत पुराना शेर आप लोग ने सबने सुना हुआ है कि ये जो हवाएं चलती हैं ये तो ऊंचा उड़ाने के लिए चलती हैं। वो कहते हैं तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तोड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। जज़ाकल्लाह। जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की हमने रहमान सिफ्त में पढ़ा था शायद, जब हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं ना, हमारा अपना पोटेंशियल हमारे सामने नहीं होता। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला इंसानों को, हम में से हर एक को अच्छे और बुरे दोनों हालात से गुजारते हैं ताकि हम अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को पहचानें। हम जब कुरान की क्लास लेने के लिए निकलते हैं तो फिर हमें अंदाजा होता है कि हम तो कितना कंफर्ट जोन में बैठे हुए वक्त जाया कर रहे थे और क्या कुछ हासिल करना है, सीखना है और फिर अपने आप को बदलना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार आप पकड़ लेना है किसी क्लास को, बल्कि ऐसी किसी क्लास को क्या, नेकी की किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जब आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कोई मौका आ जाए कि इसके जरिए से हम अल्लाह के साथ जुड़ सकते हैं, उसको जाने ना दें। जस्ट होल्ड ऑन टू दैट, क्योंकि इसी के बारे में सवाल होगा।
अल्लाह ताला ने कहना है आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने उसको कैसे इस्तेमाल किया? क्या आपने उसको अल्लाह के साथ कनेक्ट होने के लिए इस्तेमाल किया? डिड यू मेक एनी एफर्ट? यही तो सवाल होने हैं। कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा हमारा, हमारे आसपास के लोग इस तरह की सिचुएशन में हो ना, तो अप्रोच हमारी उनको नसीहत करने की, क्योंकि हमारे जिम्मे अल्लाह ताला ने लगाया है क्या आपके ऊपर पहुंचाना है, नसीहत तो हमें करनी है, फिर हमारी अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए उस वक्त। आई कैन मतलब टोटली मैं रिलेट कर सकती हूँ। आई हैव बीन थ्रू दिस थिंग सो मेनी टाइम्स, क्योंकि मेरे पास भी लोग आते हैं, देखती हूँ मैं। आपकी अप्रोच उस वक्त थोड़ी सी एम्पैथी वाली होनी चाहिए। पहले आप उनकी सिचुएशन को समझें, उनके साथ आप बॉन्ड बनाएं, उनके साथ कनेक्ट हों। अगर आप स्ट्रेट उनको सब्र और तवक्कुल की बात उस वक्त करेंगे ना, तो उस सिचुएशन में बल्कि पता क्या होता है, इस तरह की नसीहतें करके हम अल्लाह से दूर करने वाले भी बन जाते हैं। अल्लाह ना करे सुन के ऐसे हालात में किसी के मुंह से कोई तकलीफ में है ना, कोई कुफर का कलमा निकल जाए, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अल्लाह ऐसा कर रहा है तो अल्लाह तो ऐसा है, नाउजुबिल्लाह, कुछ ऐसा उन्होंने कह दिया, तो हम भी उसके अंदर हिस्सेदार हो जाएंगे। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट। और मोमिन जो है ना, हजरत उस्मान ने क्या कहा था, मोमिन की फरासत से डरो, बहुत समझदार होता है। हम तो बड़ी बोंगियां मार रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अता फरमाए, वो ईमान भी अता फरमाए जो फरासत देता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? हम क्लास एक बात आप बता दें, जो आपने कहा था ना इब्ने आदम से 5 सवाल होंगे, जो उसमें था कि उम्र कैसे गुजारी है, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, और उसके बाद अपनी 5 सवाल हैं, उनमें से 2 सवाल तो वक्त के बारे में है। एक तो ये कि आपने उम्र कैसे गुजारी आपकी पूरी जिंदगी में, और जिंदगी कैसे गुजारनी है उसका हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स क्या है, वला तमूतुन्ना, मरना नहीं मगर तुम मुसलमान हो, जिंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह सुब्हानहू तआला की फर्माबरदारी में गुजारना। दूसरा सवाल है जवानी के बारे में, क्योंकि बुढ़ापे में तो क्या कहते हैं, बूढ़ा भेड़िया भी शिकार करना छोड़ देता है, बुरे से बुरा बंदा भी नेक हो जाता है। तो जो जवानी के अंदर जो आपका अल्लाह के साथ कनेक्शन बनता है, और जवानी से मुराद ये नहीं है जो हमने दुनिया के जो जवानी के चंद साल बनाए हुए हैं ना, वो नहीं। जवानी का मतलब होता है वो वाला वक्त जिसमें आप कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, आप घर के काम कर रहे हैं, आप फैमिली में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उस वक्त में आपकी प्रायोरिटीज क्या है, जब आपकी सलाहियतें आपके दिमाग की, आपके जिस्म की पूरे अरूज पे हैं, आप उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो क्या उसमें कोई प्रायोरिटी आपने अल्लाह सुब्हानहू तआला को दी हुई है? उस वक्त में आप अल्लाह के साथ क्या कर रहे हैं, अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं? फिर वहां पे माल के बारे में 2 सवाल, माल कहाँ से आया, क्या उसको हासिल करने के लिए अल्लाह की हदों को तो नहीं तोड़ा, किसी के हक को तो नहीं मारा, किसी धोखाबाजी बेईमानी तो नहीं की, और फिर उसको इस्तेमाल कैसे किया, क्योंकि माल भी जब आता है तो इंसान को इख्तियार और इक़्तिदार के मिस यूज करने की तरफ ले जाता है। और उस वक्त बलदी का हवाला मैंने आज दिया था कि इंसान चाहता है उसको कोई ना पूछे, और दोनों आयात के दरमियान में एक आयत है जिसमें वो कहता है कि मैंने अपने माल को उड़ाया, राइट। तो ये माल का इस्तेमाल जो है ये बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जो तकवा वाले हैं उनको अल्लाह ताला दे भी देते हैं ना बहुत ज्यादा उनकी जरूरतों से, तो वो उसको उड़ाते नहीं है, वो फिर उसको इस्तेमाल भी पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। जिसने दिया है उसके मर्जी की जगहों पे मर्जी के तरीकों से करते हैं। और फिर 5वीं चीज जो है वो इल्म है, जिसके ऊपर हम बहुत बात करते हैं। हम इल्म हासिल करने के लिए ही इस क्लास में आए हुए हैं। जो इल्म हासिल किया उसका किया क्या उसके ऊपर अमल किया? ये वो 5 सवाल हैं जिसके जवाब हर इब्ने आदम को देने पड़ेंगे। औलाद आदम में से हर एक इस 5 सवालों के जवाब देगा। फिर उसका हिसाब जो है, अगर ये सीधा होगा, बगैर हिसाब होगा, तो फिर वो उसको उसके अंजाम की तरफ, जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। और अगर उसका जो है वो सुअल हिसाब होना है, तो फिर उसकी निटिग्रिटीज में भी जाया जाएगा। फलां वक्त ये झूठ बोला था, फलां वक्त इसको ये किया था, अब उठाओ इसके गुनाह अपने कंधों पे, फिर मजीद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है। सिस्टर, आपने लफ्ज़ फरासत इस्तेमाल किया, इसके लग़वी मानी क्या हुए? फरासत कहते हैं समझदारी को, विजडम को, हिकमत को। अल्लाह ताला से दुआ करते हुए अल्लाह ताला हमारी एफर्ट्स को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला
जो इसमें कमियां रह गई हैं, जो हमसे गलतियां हो गई हैं, उनको दरगुजर फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम उसके नामों के जरिए से उसके साथ जुड़े रहें। अल्लाह हम अपने ज़ात को हमारी पहली प्रायोरिटी बना दे, हम उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करें, उससे सबसे ज्यादा खौफ खाने वाले हों, सबसे ज्यादा उसकी तरफ रुजू करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन नसीहत लेने वाला बना दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु अलैक। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।